السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس ناول جاری من کے ایپیسوڈ نمبر 21 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابدال ڈارتوا کسی درندے کی طرح ابراہیم مینشن میں داخل ہوا تھا، جسے آج کسی کا لحاظ نہ تھا، نہ رشتوں کا اور نہ ہی کسی دوستی کا۔ تمام نوکر لاؤنج میں ہی جمع ہو گئے تھے۔ ابراہیم صاحب اور سترہ بیگم بھی اس کی گرجدار آواز پر نیچے آ گئے۔ کیا حرکت ہے یہ؟ کیوں شور مچانے آ گئے آپ؟ اسے لاؤنج میں کھڑا دیکھ کر ناگواری سے بولے جب پولیس کانسٹیبلز بھی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ کہاں چھپا رکھا ہے اپنے لاڈلے کو؟ نکالے باہر۔ سرد آواز میں بولتا قریب آیا تو انہوں نے غصے سے اسے پھر پولیس آفیسر کو دیکھا۔ آفیسر، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں اور آپ لوگ بغیر اجازت کیسے اندر داخل ہوئے؟ ناگواری سے جنونی کیفیت میں کھڑے زیان کو دیکھ کر بولے، مسٹر ابراہیم، جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔ ابدال ابراہیم کہاں ہے؟ آفیسر کے کہنے پر زیان نے سرخ پڑتی آنکھوں سے ان کے زرد چہروں کو دیکھا۔ کیا اس نے سترہ بیگم حواس باختہ ہو گئی تھی۔ آپ کا وہ صاحب میری بیوی ملاحل کو اغوا کر کے بھاگا ہوا ہے، زیان نے سرخ پڑتی آنکھوں سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تو دونوں میاں بیوی کو جیسے سانپ سونگھ گیا، جبکہ اوپر کھڑی عشا مزے سے یہ لائیو شو دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا بیٹا ایسا کیسے کر سکتا ہے جب وہ 2 ہفتے پہلے ہی واپس دبئی جا چکا ہے؟ زیان کو دیکھ کر مضبوط لہجے میں بولے تو وہ ضبط سے مٹھیاں بھیجتا ان کے پاس آ رکا۔ اگر آپ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو نہ کریں، کیونکہ جتنا وقت وہ مراحل کو مجھ سے دور رکھے گا اتنی زیادہ اذیت ناک موت میں اسے دوں گا۔ اس کے ٹھہرے ہوئے اٹل لہجے پر ابراہیم صاحب کو اس کی آنکھوں میں نظر آتے انتقام سے ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے آفیسر؟ آپ کے سامنے دھمکی دے رہا ہے مجھے؟ اگر میری بات کا یقین نہیں کرتے تو ثبوت ہے میرے پاس۔ جاؤ ذرا اس کے ٹکٹس کی ڈیٹیل لے کر آؤ، بیوی کو کہتے زہر خندہ انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ سترہ بیگم جلد سے تمام تفصیلات لے کر آئیں اور آفیسر کو تھما دیں۔ سوری سر، مگر یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ تفصیلات دیکھنے کے بعد اس کی معذرت پر زیان نے غصے سے اسے دیکھا۔ اسد کیا بول رہا ہے یہ؟ تو ان کی باتوں کا یقین کریں گے اب ہم؟ ناگواری سے آفیسر کو دیکھتا بفر اٹھا تھا۔ میری بات سن زیان، ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے ابھی۔ آفیسر اسد نے اسے قائل کرنا چاہا تو زیان نے ایک نفرت بھری نگاہ ابراہیم صاحب پر ڈالی جو غصیلی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں قسم کھاتا ہوں اگر ابدال اس میں ملوث ہوا تو اس کی لاش اب اس گھر میں داخل ہوگی۔ انہیں وارن کرتا، لمبے لمبے ڈگ پڑتا باہر نکل گیا۔ اوپر کھڑی عشا کو آج ملاحل حیدر کی قسمت سے شدید حسد محسوس ہوئی تھی۔ ملاحل، تم پر موت واجب ہو گئی ہے اب۔ آنکھوں سے آنسو صاف کر کے پھنکارتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اندھیرے کمرے میں پایا، سر درد سے پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارد گرد دیکھ کر ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کرنے لگی۔ جس وقت وہ ہاسپٹل سے نکلی تھی اس وقت اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ بس پیدل ہی نکل گئی تھی، مگر جو عذاب اس پر آیا تھا اس کا بالکل اندازہ نہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ اسے کیوں یہاں لائے تھے، کیا مقصد تھا۔ وہ کل سے یہاں بھوکی پیاسی بندھی پڑی تھی، آنکھوں کے سامنے بار بار بس زیان اور میرا آ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میرا کیا قصور ہے ایسا جو اتنی بڑی آزمائشیں لے رہا ہے؟ میرے رب، میں مر جاؤں گی، میری مدد کر۔ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یا اللہ، انہیں بھیج دے میرے پاس۔ اس پل اسے زیان شدت سے یاد آیا تھا۔ نہ جانے اس شخص کو اس کی غیر موجودگی کی پرواہ ہوگی بھی یا نہیں۔ یہ خیال آتے ہی اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ ہاں، میں تو پہلے ہی مجبوری تھی ان کے لیے۔ اپنی بدقسمت پر فرش پر پڑی ایک بار پھر سسک اٹھی تھی جب ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا تھا۔ اس نے آنکھیں چندیا کر دیکھنا چاہا، مگر اس کے قریب ہی آ کر بیٹھا تو وہ زمین سے کہنے کے بل اٹھی، ہیلو مائی ڈیئر، کیسی ہو؟ اس کی آواز پر ملاحل نے چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ ہلکی سی روشنی میں اس کا چہرہ نظر آیا تو ملاحل کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ ابدال؟ اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ارے واہ، میں یاد ہوں تمہیں؟ ہنستے ہوئے اس کے برابر میں ہی ٹکیا وہ یکدم کھسک کر دور ہوئی۔ تم نے کیا ہے یہ سب؟ بے یقینی سے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ ابدال نے سر نیچے کر کے اسے قریب سے دیکھا۔ نہ، اس لیے تھوڑی لایا ہوں تمہیں سویٹ ہارٹ۔ اس کے آنسو پہنچنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ملاحل بدک کر دور ہوئی۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان، چیختی ہوئی دیوار سے لگ گئی۔ ابدال نے غصے سے اس کے بال جکڑے۔ وہ کراہ اٹھی، کمینی، تیرا وہ حال کروں گا زندگی بھر، تیرا وہ سو کالڈ شوہر دیوانوں کی طرح تجھے پکارتا پھرے گا۔ زور سے جھٹکا دے کر پھنکارا وہ تڑپ اٹھی تھی۔ پلیز ابدال، مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ سسکتے ہوئے اس سے التجا کی تو ابدال نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ جانتی ہے کمینی، تیری وجہ سے جیل گیا میں، وہاں کی ماریں برداشت کی، تبھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا تجھے درد دے کر تیرے اس مجنوں کو تڑپاؤں گا۔
सख्ती से उसकी थोड़ी पकड़ कर बोला जहाँ से अब खून बहने लगा था। नहीं, 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 लेकिन मज़ा तो अब आया ना, जब वो तुझे ढूंढे। वो तो समझ रहा है तू अपने आशिक के साथ भाग गई। कहका लगाकर उसका गाल थपकता उठ खड़ा हुआ, मगर मनाहिल को अपना वजूद सुन पड़ता महसूस हुआ। बेयकीनी सी बेयकीनी थी, कैसे मेरी परवाह तक नहीं। उसे ढूंढने की कोशिश भी न की। अब्दाली उसकी बदलती रंगत पर एक तमस्खाना निगाह डाली, मतलब तीर निशाने पर लगा था। तुम झूठ बोल रही हो, देख देख लेना, वो जरूर आएंगे। आंखों से आंसू लड़क कर गाल पर गिरे थे। लहजे की कोशिश के बावजूद भी मजबूत न रख सकी थी। बेबी से आना होता तब तक आ चुका होता। उसके आंसू साफ करने के करीब आया तो वो एक बार फिर पीछे हुई। इस दरिंदे से वो किसी भी हरकत की उम्मीद रख सकती थी। अभी तो मुझे एक काम से जाना है, फिर आकर तफसील से मुलाकात होगी। गहरी नजरों से उसके बगैर दुपट्टे के वजूद का जायजा लेता मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। या अल्लाह मेरी मदद कर, सर घुटनों में देती फिर से सकने लगी थी। रामीन घर आ चुकी थी और जल्द अज जल्द जान से मिलना चाहती थी, मगर वो मरहल की गुमशुदगी की खबर सुनकर अब तक घर न लौटा था। रहम और अली भी मुसलसल उसके साथ थे, पुलिस के साथ पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे। अगवाकारों की तरफ से अभी कोई कॉल न आई थी। इनका पूरा शक अब्दाल पर ही था। वो अभी रहम के साथ घर आया था। लॉन्ज में दाखिल हुए तो सौम्य बेगम और हिना बैठी थी। कुछ पता चला मेरी बच्ची के बारे में? उन्होंने फिक्रमंदी से खड़े होते पूछा। राहम ने एक नज़र जियान के शौक पड़ते चेहरे को देखा और नफी में सर हिला गया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दुआ करे। निडाल सी होती माँ को सोफे पर बिठाते बोला। इतने में रोती दुआ चले आए। भाई भैया भी कहाँ है? जियान की आस्तीन पकड़कर बोली, रो रो कर उसकी हालत अबतर हो चुकी थी। दुआ संभालो खुद को और दुआ करो मेरी जान। जियान के साकत वजूद को देखकर हिना ने करीब आकर उसे थामा। लेकिन आप मेरी आप भी कैसी होंगी? इन्हें कुछ हो गया तो? उसने सिसकते हुए हिना से कहा। जियान को लगा किसी ने दिल पर आधी चला दी। दुआ, जियान ने सर लहजे में उसे पुकारा। तब बताए कहाँ गई? वो मिली क्यों नहीं अब तक आपको? वो भी रोती हुई उससे लड़ने लगी। अपनी जान से अजीज बहन की जुदाई ने उसे पागल कर दिया था। वो सख्ती से अपना लब खींच गया। मेरा वादा है खुद से दुआ, मर जाऊंगा मगर इसे वापस जरूर लाऊंगा। अटल लहजे में कहता लंबे लंबे डग भरकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसने आर्ज पार करने का फैसला कर लिया था। कमरे में आया तो रामीन मीरब को गोद में लिए बैठी रो रही थी। रामीन अपनी बहन को सही सलामत देखकर उसका दिल कुछ पुरसकून हुआ था। वो मराहल के चक्कर में जैसे पूरी दुनिया से गाफिल हो बैठा था। रामीन ने सर उठाकर उसे देखा तो तड़प कर उसके सीने से आ लगी। भाई मुझे माफ़ कर दे भाई, प्लीज़, सब मेरी वजह से हुआ है भाई। उसकी ने सीने से लगी तड़प रही थी। जैन ने प्यार से उसे अलग किया। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती, ये तो किस्मत में लिखा था। उसका आंसू पहुँच कर दिलासा दिया, मगर वो खुद अंदर से बिखरता जा रहा था। रामीन ने बेबसी से लब काट कर उसे देखा। भाई मुझे कुछ बताना है आपको। नजरें नीचे करके धीरे से बोल दी। दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम रेस्ट करो अभी रामीन, टेंशन न लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसका गाल थपक कर समझाना चाहा, मगर वो शिद्दत से रो पड़ी। भाई मुनाहिल के साथ ये सब सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, उसने रोते हुए कहा। तो जाने ना समझी से उसे देखा। क्या मतलब? तुम्हारा क्या लेना देना इस बात से? उसे बेड पर बिठाया क्योंकि वो हल्के हल्के कांप रही थी। भाई मुनाहिल को इसने अगवा किया है, उसका हाथ पकड़कर सहमी हुए अंदाज में बोली। तो जैन की आंखों का रंग अचानक ही बदला था। किसने? ये एकदम ही धड़ा उठा। वो खौफ से खड़ी हो गई। अब अब्दाल ने मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैंने उसकी मदद ना की तो मेरी हकीकत सबको बता देगा। उसने डरते डरते बताना शुरू कर दिया। जैन को समझ ना आया। ये क्या कह रही हो रामीन? कैसी हकीकत? वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा था तुम्हें? सर्द लहजे में इस्तफसार करता उसके हवास सलब कर गया। मैंने ही अब्दाल और ईशा के साथ मिलकर उसकी पिक्स बनवाई थी भाई। नम आंखें उठाकर भाई को देखा, जिसका वजूद इस वक्त जल्जलों की जद में था। मैं समझती थी वो मोहित को पसंद करती है। मेरी ये गलत फहमी मुझसे गलतियाँ करवाती चली गई। मेरी माहियों वाले दिन मैं आपको देख चुकी थी दरवाजे पर। बस इसे आपकी नज़र में बुरा बनाने के लिए वो सब कहा था। उसके करीब आकर उसके हाथ थामे जो बिल्कुल साकत हो चुका था। उसे लगा इस पर मौत भी आ जाती तो इतना कम न होता, लेकिन उसकी बहन ने आज उसे जिंदा ज़मीन में उतार दिया था। मोहित को जब पता चला तो उसने सारी हकीकत मुझे बताई कि वो महज अच्छी दोस्त थी उसकी, जिसका सब कुछ तबाह कर दिया मैंने अपने हाथों से। भाई वो मुझे छोड़कर चला गया है कि मैं तुम जैसी घटिया लड़की के साथ नहीं रह सकता। रोते हुए तमाम हकीकत आश्कार करती चली गई। जिया ने उसका हाथ झटक कर जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। तमाम खवातीन जो जियान के धाड़ पर ऊपर आई थीं, वो भी दरवाजे पर बेयकीन से खड़ी थीं। रिदा और हिना तेजी से उसके करीब आई। सही कहा उसने, तुम जैसी गठी लड़की को तो जीने का भी हक नहीं।
क्यों बर्बाद की उसकी और मेरी ज़िंदगी, जवाब दो। इसे झिंझोड़ता बोला, उसने भी क्या कुछ न किया था इस मासूम को अज़ियत देने के लिए। मुझे माफ़ कर दे भाई, मैं मोहित की मोहब्बत में अंधी हो गई थी, सही गलत का फ़र्क तक भूल गई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। पशेमाँ सी नज़रें झुकाकर बोली, जानती थी उसका भाई अब कभी उसकी शक्ल देखना भी गवारा ना करेगा। उसे नफ़रत से देखता अलमारी की तरफ बढ़ा था और लॉकर से गन निकालकर कमरे से निकलने लगा, जहाँ सौम्या बेगम और फायका बेगम सदमे में खड़ी थीं। रामीन ने खौफ से भाई को देखा। भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं? उसके हाथ में गन देखकर सभी खौफ में आ गए थे। दुआ करना मना है, सही सलामत हो वरना ज़्यादा हैदर की भी लाश ही घर लौटेगी। सुर्ख पड़ती आंखों से जनूनी लहजे में कहता है, किसी की भी सुने बगैर बाहर निकल गया। फायका बेगम बेबसी से चीखती रह गई थी, मगर वो जा चुका था। ये क्या कर दिया रामीन तूने? बेड़ा गर्क हो तेरा। निढाल से वही सीढ़ियों पर बैठती चली गई, जबकि वो कोने में नदामत से खड़ी सिसक रही थी। सभी उसके जुर्म पर साकत से हो गए थे, किसी के पास इतनी हिम्मत न थी कि उसे 2 बॉल दिलासे के दे देता। भाभी आपने इसे अपना न समझा न कभी रामीन ने। आखिर इस मासूम का कसूर क्या था जिसे इतनी बड़ी सजा दी? इस पर जिंदगी ही तंग कर दिया आप लोगों ने। सौम्या बेगम भी फट पड़ी थी आज। दुआ और उमर सख्ते की कैफियत में वही खड़े थे। फायका बेगम की आंखें भी पशेमानी से नम हो गई थी। कितनी संग दिल थी वो। इस मासूम को किस दहेज पर ले आई थी वो और इनकी बेटी। अल्लाह तो मेरे बच्चों को खैरियत से लौटा दे। मैं हाथ जोड़कर अब खुद अपनी बेटी से माफ़ी मांगूंगी। उन्होंने झोली उठाकर अपने रब से भीख मांगी तो मुर्तज़ा साहब भी सदमे से चूर कमरे की तरफ बढ़ गए। आज इनकी औलाद ही ने कहीं का ना छोड़ा था। दुआ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो उमर, मैं मर जाऊंगी वरना। रामीन से सख्ती हुई, उनके पास आए, मगर वह नफरत से मुंह मोड़ गए। वो कैसे ऐसी लड़की को माफ़ कर सकते थे जिसकी वजह से आज उनकी बहन इतनी अजियतों में थी। नाम जिस किसी सिसकियों से गूंज रहा था, मगर इसे माफ़ करने वाला कोई न था। तुम्हें तुम्हारे आशिक के साथ कब्र में उतारूंगा। शट अप, मुझे मजीद कोई बकवास नहीं सुननी। तुम्हारी ज़िंदगी अजाब करती है। तुम तो सारी ज़िंदगी का मसला हो, क्या करोगी? हाँ, मैं कसम खाती हूँ मेरा इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हम यूनी टाइम से दोस्त हैं बस। कार झटके से सड़क के किनारे रोकी थी। अपने कहीं जहरीले अल्फाज जहन में घूम रहे थे। दिलो दिमाग दर्द से फटने को था। या अल्लाह इसकी हिफाजत कर, वो बहुत मासूम है। स्टीयरिंग पर सर रखकर अपने रब से फरियाद कर रहा था। मन, एक बार वापस आ जा, तुम्हें हमेशा के लिए हर गम से दूर कर दूंगा। जानम, आंखों के आगे उसका मासूम सा रोता बेबस हुआ चेहरा आ गया। कितनी अजियतें दी थी इस नाजुक सी लड़की को, क्या कभी माफ़ करेगी उसे वो? नहीं जान हैदर, औरत हर चीज़ भूल जाती है मगर अपने किरदार पर इल्ज़ाम कभी नहीं भूलती। मैं अपनी हर गलती का साला कर दूंगा मन, बस तुम एक बार मेरे पास वापस आ जाओ। तसव्वुर में उस दुश्मनी चाह को सोचते अपना मोबाइल निकाल कर कार मिलाई थी। हेलो, कैसी हो? उसकी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ बैठी वजह से खिल उठी। जियान, कैसे हो? आज न जाने कितने दिन बाद उसने खुद कांटेक्ट किया था। इशू, बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं। मामू ने सच कहा था, अब्दाल पाकिस्तान में नहीं है, मैंने मालूम करा लिया। वो चली गई मुझे और अपनी बेटी को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर। उसकी बेचैनी पर वो भी परेशान होने लगी थी। प्लीज़ जियान, तुम क्यों इस खुदगर्ज लड़की के लिए परेशान हो रहे हो? मैं तो शुरू से इसकी हकीकत जानती थी, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप रही। उसके लहजे की नफरत पर जियान की खून पर गिरफ्त मजबूत हो गई। सही कह रही हो तुम, इस बेवफा लड़की के लिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकता। जहरीले अंदाज में कहता उस पर शादी मर के इसी कैफियत तारी कर गया। क्या क्या हम आज मिल सकते हैं जियान? खुद को संभालती हुई बोली। ओके। फ़ोन काटता कार स्टार्ट कर गया। उसका रुख पुलिस स्टेशन की जानिब था। हेलो माय स्वीट हार्ट, कैसी हो? कमरे में दाखिल होते प्यार से उसे पुकारा, जैसे कोई महबूब बहुत चाह से आया हो। मनाहिल को अपनी बेबसी पर एक बार फिर रोना आने लगा। मुझे पता था तुम भूखी हो, बस इसीलिए दौड़ा चला आया। उसके आगे ट्रे रख कर बैठा, जबकि दूसरे हाथ में कोई पेपर्स थे। उसने नागवारी से मुंह मोड़ लिया। चलो शाबाश, खाना खाओ, फिर हमको बहुत अहम बात करनी है। चमचा उसके आगे किया तो वह पीछे खिसकी। तो मेरे हाथ से खाने से बेहतर है मैं जहर खा लूँ। नफरत से उसे देखा, अब्दाल जोर से हंस पड़ा। नहीं जानम, अभी मरना थोड़ी है, पूरी ज़िंदगी मेरी खिदमत करनी है। उसके गाल पर हाथ रखना चाहा, वो फिर पीछे हुई। अब्दाल, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे जाने दो, मैं मर जाऊंगी मीरब के बगैर। रोते उसे इल्तिजा करने लगे। प्लीज़ तुम ऐसे मत रो मनाहिल, तुम्हारी ये हसीन आंखें रोने के लिए नहीं है और मज़ीद अट्रैक्ट कर रही हो। करीब आकर उसके आंसू साफ किए। मनाहिल और चित्ते से रोने लगी, क्योंकि मज़ीद पीछे होने की जगह ख़त्म हो गई थी। दूर रहो मुझसे, चीख कर चेहरा दूसरी जानिब किया। अभी तो कुर्बत के दिन है, तुम फासलों की बात करती हो। उसका चेहरा पकड़कर चावल उसके मुंह में डालने लगा। देखो कितना ख्याल है मुझे तुम्हारा।
जबरदस्ती चावल उसके मुंह में ठूसे तो उसे फंदा लग गया। जोर जोर से खांस से आंखों से आंसू निकलने लगे। वो पुरसुकून अंदाज में बैठा उसके खुले हुए बालों को देख रहा था। खांसी रुकी तो निढाल सी होकर सर दीवार से टिका दिया। अब्दाल उसके हाथों की रस्सी खोलने लगा तो मनाइल ने हैरत से उसे देखा। ऐसे न देखो, दिल के साथ साथ ईमान भी हार बैठूंगा। आंख मार कर बोला तो मनाइल का दिल तेजी से धड़कने लगा। चलो शाबाश, साइन करो इन पेपर्स पर जल्दी। पेपर्स और पेन उसके आगे रखकर बोला। तो मनाहिल ना समझी से उसे और फिर पेपर्स को देखने लगी। कैसे पेपर्स हैं ये? लरसते हुए हाथों से पेपर्स उठाकर देखने लगी। इस खबीस आज़ादी का परवाना है। शाबाश, जल्दी करो साइन। पेन उसके सुन पड़ते हाथों में थमाकर बोला था। मनाइल ने दोनों चीज़ें उसके मुंह पर दे मारी। तुम मेरी जान भी ले लो तब भी ऐसा नहीं करूंगी, समझे? चीख कर कहती उसे पागल कर गई। तेरा तो हार करूंगा, तेरे फरिश्तों को भी सहन करना पड़ेगा। सख्ती से उसके बालों को झटका देकर धाड़ा। आह, तो मेरे फरिश्तों से ही करा लो जाकर। तकलीफ से तड़पते हुए मुस्कुराकर कहते उसे आग लगा गई। साली कमीनी, देखता हूँ कैसे नहीं करती। जुनूनी अंदाज में उस पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर गया। पूरे कमरे में उसकी चीखें गूंज रही थी। कुछ ही लम्हों में ठोकरों की अजियत सहता उसका वजूद साकत हो गया। उसने हाँफते हुए एक आखिरी ठोकर उसे मारी और गुस्सीली नजर डालता कमरे से निकल गया। किधर थे? कब से वेट कर रही हूँ, नाराजगी से उसे देखकर बोली। बस यार, ऑफिस से सीधा यहीं आया हूँ। खुद को नॉर्मल रखता उसके साथ ही बैठ गया। इस वक्त वो लोग बीच रेस्टोरेंट में मौजूद थे। कुछ पता चला इसका? खोजते हुए लहजे में पूछा तो ज़ियान लब भींच गया। उसकी बात करने के लिए मिले हम यहाँ, नागवारी से बोला तो ईशा ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। आई एम सॉरी जी, अगर तुम हर्ट हुए तो वो लड़की इस लायक भी नहीं कि हम उसका जिक्र करें। मुस्कुराकर बोली ज़ियान ने एक नज़र उसे देखकर अपना हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स अब सिर्फ इसका है। कुछ खा लेते हैं पहले। उसे खुद को तख्ता पाकर ज़ियान ने मुस्कुराते हुए वेटर को बुलाया। इस वक्त रेस्टोरेंट में चंद एक कपल ही मौजूद थे। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। ज़ियान ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाला तो अचानक जूस छलक कर उसके कपड़ों पर गिरा। ओह, आई एम सॉरी यार, उसे खड़ा होते देखकर बोला। इट्स ओके ज़ियान, मैं वॉश करके आती हूँ। टिश्यू से ड्रेस साफ करती मुस्कुराती हुई चली गई। उसने एक नज़र जादीशा को देखा, फिर टेबल पर पड़े उसके मोबाइल को और कुछ सोचकर उठाया, मगर उस पर पासवर्ड लगा था। शिट! जोर से टेबल पर मुक्का दे मारा। एक दो दफ़ा कोशिश के बाद बिलाखिर अपने नाम पर खुल गया था। व्हाट्सएप चैट में अब्दाल कहीं न था। कॉन्टैक्ट्स में जाकर अब्दाल की चैट में गया तो पूरी चैट रिमूव थी। उसके फ़ोन पर ग्रिप एकदम ही मजबूत हो गई, लेकिन अभी होश से काम लेना था, बहुत ज़रूरी था। एक अननोन नंबर से 1 घंटे पहले इसकी बात हुई थी, जिसमें बस दूसरी तरफ से नहीं का मैसेज आया हुआ था और कोई मैसेज मौजूद ना था। वो किसी भी वक्त लौट सकती थी। उसने एक नज़र इंटरेस्ट पर डाली, फिर अपने मोबाइल में नंबर सेव करके हवा में तीर चलाते इस नंबर पर टेक्स्ट सेंड कर दिया। मुझे मिलना है तुमसे, जिसे फ़ौरन रिसीव कर लिया गया था। पागल हो यो, कुत्तों की तरह सूंघता फिर रहा है तुम्हारा महबूब, मुझे मरवाओगी क्या? जवाब आने पर ज़ियान को अपनी रगों में आग भरती महसूस हुई। दूर से आतिशा पर नजर आई तो फ़ोन वापस जगह पर रख दिया। बस नहीं चल रहा था इस टाइम का चेहरा बिगाड़ दे, मगर मनाहिल की ज़िंदगी के लिए ज़ब्त लाजिम था। तुमने खाना शुरू नहीं किया अब तक? उसे खामोश बैठे देख हैरत से बोली। तुम्हारा वेट कर रहा था। मोबाइल पर किसी का मैसेज सेंड करते मुस्कुराकर बोला। वो यकदम भी खिल उठी। ज़ियान, अब मैं बिल्कुल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी। तुम फ़ौरन शादी की बात करो पप्पा से। खफगी से बोली तो वह भी सर इस बात में हिला गया। ओके। वो सब्र से बैठा अपना ज़ब्त आजमा रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि उसका मोबाइल बज उठा। बोलो। ओके, मैं आ रहा हूँ मैं। कॉल रिसीव करके झटके से खड़ा हुआ तो ईशा ने परेशानी से उसे देखा। क्या हुआ? वो भी खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई जब भी ज़ियान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। वो झटके से चेयर पर गिरी, अभी संभली भी न थी जब दूसरा थप्पड़ पड़ा था। साकत उसे देखने लगी। समझ नहीं आया था अचानक आखिर हुआ क्या था। खेल खत्म ईशा इब्राहिम। गेम इज़ ओवर नाउ, इट्स माय टर्न। सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देखकर उसका मोबाइल उठाकर समंदर में फेंक दिया ताकि वो मजीद कोई गेम न खेल सके। अभी तो मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को बचाने, मगर याद रखना, अब्दाल का साथ देने की बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। उसके कानों में शीशा डेलता तेजी से निकल गया था, जबकि वो साकत से वही खड़ी रह गई थी। दिल और दिमाग अब तक मानने को तैयार न थे जो वो जो कुछ वो शख्स करके जा चुका था। आंसू ने खामोशी से आंखों का बंद तोड़ा था। अजीब वहशत से सवार होने लगी। अचानक ही पागलों की तरह चीख चीख कर रोने लगी। नहीं ज़ियान, तुम सिर्फ मेरे हो ज़ियान, मैं मर जाऊंगी जी, वापिस आओ। उसके इस तरह चीखने पर वेटर्स भी रुककर उसे देखने लगे, मगर चंद ही लम्हों में दीवानों की तरह चीखती ईशा इब्राहिम अचानक ही खड़े गद से गिरी थी। मुंह से एक खून का धारा निकला था और देखते देखते होश हवास से बेगाना हो गई। कमरे में आए तो वह नीम खानूदगी में सर दीवार से टिकाए
बैठी थी, इतनी मार खा कर भी उसकी अकड़ खत्म ना हुई थी। बेशताब खाता उसके पास आया। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, साइन कर रही है या नहीं? उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा वो करा उठी, मर कर भी नहीं। लबों पर पुरअज़ियत मुस्कुराहट ली उसे देखा। दर्द से आंखों से मुसलसल आंसू जा रहे थे। ठीक है, फिर तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ आज। पैंट की पॉकेट से गन निकाल कर उसके माथे पर टिकाता इस्तेज़ाइया लहजे में बोला। मनाहिल की आंखों में बस एक पल के लिए खौफ आया था, मगर अगले ही लम्हे अपनी आंखें बंद कर गई। मार दो अब्दाल मुझे, ये एक एहसान कर दो मुझ पर। इल्तिजाई लहजे में उससे बोली, क्योंकि अब जिंदगी में बचा ही क्या था। किसके लिए अपनी जिंदगी की भीख मांगती? वो शख्स पहले ही उसे बदकिरदारी का तकमा दे चुका था। अब 2 दिन से गायब लड़की का क्या यकीन करता? बस एहसान ही तो नहीं करना चाहता मैं तुझ पर। उसकी थोड़ी पकड़ कर बगैरती से उस पर झुकने लगा। वो बदक का यकदम दूर हुई। तो पेपर साइन नहीं करेगी ना? उसने एक बार फिर पूछा तो मनाहिल ने नफी में सर हिला दिया। ठीक है, फिर हम ऐसे ही गोल्डन नाइट मनाएंगे। खबासत से आंख मारता उसके पास आया। जी बिल्कुल जद पड़ चुकी थी। तुम ऐसा ऐसा कुछ नहीं करोगे अब्दाल, प्लीज। हथेली के बल पीछे होना चाहा, मगर वो अपने शिकंजे में ले चुका था। सर, यही जगह है। वो लोग पुलिस फोर्स के साथ इसके फार्म हाउस के बाहर खड़े थे। जियान के माथे की रगें यकदम दन सी गई थी। रशीद, तुम बाकी बंदों को लेकर फार्म हाउस के चारों तरफ फैल जाओ। ऑफिसर ने हिदायत दी और बाकी कांस्टेबल जियान के साथ तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गए, जहां मेन गेट पर उसके बंदे खड़े थे। कहाँ चले आ रहे हो? फायर करो इन पर। एक आदमी ने इन्हें देखते ही फायर खोल दी थी और देखते ही देखते दोनों जानिब से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। पीछे से एक आदमी ने जियान पर राड दे मारी। आह! वह यकदम दूर हुआ और घूम कर अपनी कहनी उसके गले पर दे मारी। वो शख्स तड़प उठा था। जियान, हम संभालेंगे इन्हें, तुम ऑफिसर के साथ मनाहिल के पास जाओ। इसे इस शख्स को अधमुआ करते देख रहा इजलत में उसके पास आया तो वह आखिरी पंच मारकर इसे दूर फेंकता अंदर की तरफ बढ़ गया। अब्दाल, छोड़ो मुझे, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। उसके शिकंजे में तड़पती उसका मुंह नोच गई थी। वो यकदम दूर हुआ और जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। साली देख अब मैं क्या करता हूँ। शर्ट उतार कर जुनूनी अंदाज में उसकी जानिब लपका। या अल्लाह मेरी मदद कर। ऐसे सकते हुए रब को पुकारा और दीवार के कोने से जा लगी। नीचे से शोर की आवाज़ें तो आ रही थी, मगर कुछ वाज़ेह न हो सका था, क्योंकि दरवाज़ा लॉक था और कमरे में रोशनदान के अलावा और कोई खिड़की मौजूद नहीं थी। न ही इसमें इतनी ताकत थी कि खिड़ी होकर भाग सके। करीब आकर इसकी एक ही झटके में उसकी आस्तीन फाड़ी तो एक दिलखराश चीख मनाहिल के लबों से निकली थी। जियान जिस वक्त उसके घुंडों से गुत्थम गथा था, उसके बाद फिर यकदम ठहर सा गया था। मन लबों से उसका नाम निकला था। जब ये गुंडे ने जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा था, वो यकदम लड़खड़ाता 2 कदम पीछे हुआ। इससे पहले कि दोबारा वही अमल दोहराता, जियान हैदर अपनी जुनूनी कैफियत में आ चुका था। एक हाथ से इसके मुक्के को अपनी मुट्ठी में जकड़ता बेदर्द पे वार करता चला गया। उसके अदमे वजूद को धक्का देता उस कमरे की जानिब बढ़ा जहाँ से उस दुश्मनी जान की तड़पती हुई आवाज़ आई थी, मगर वह कमरा लॉक था। उसने धक्का मारना चाहा, मगर वह ना खोला। अब्दाल, मैं तेरी जान ले लूंगा अगर तुम मन के करीब गया। दरवाजे पर पे दर पे ठोकरें मारता धाड़ा था। प्लीज़ बचा ले मुझे। मनाहिल की गड़गड़ाती आवाज़ पर जियान को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। अपनी पूरी जान लगाकर एक और जोरदार धक्का मारा तो दरवाज़ा खुलता हुआ दीवार से जा टकराया, मगर सामने का मंजर देखकर उसके पूरे वजूद में शोले भड़क उठे थे। अब्दाल उसकी दूसरी आस्तीन फाड़कर उस पर झुक रहा था, मगर अब जियान की आमद पर उसने नफरत से इसे फिर मनाहिल को देखा। जियान, मनाहिल के लबों से दर्द भरी आवाज़ निकली थी। आंखों से कई आंसू निकलते चले गए। कमीने दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। वहीं अब्दाल भी अपना प्लान फेल होने पर जैसे पागल हुआ था। अब्दाल ने उसके मुंह पर मुक्का मारना चाहा, मगर वह यकदम पीछे हुआ और उसके पेट पर मुक्के मारता दीवार तक ले गया। अब्दाल ने अपनी कहनी उसके कमर पर मारी तो जियान तकलीफ से दूर हुआ, मगर मजबूती से मुक्का बनाता उसके मुंह पर मारता चला गया। अब्दाल भी उससे गुत्थम गथा हो चुका था। वह खौफ से कोने में बैठी सिसक रही थी। दोनों जानवरों की तरह लड़ रहे थे। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को अगवा करने की? गरजते हुए एक बार फिर पूरी कुव्वत से मुक्का उसके मेट पर मारा तो वह तड़प कर यकदम घुटनों के बल गिरा था, मगर जियान फिर भी न रुका था। वो किसी वहशी दरिंदे की तरह उसे मार रहा था, जैसे आज उसकी बोटी बोटी नोच लेगा। मनाहिल के चेहरे पर खून और नील के निशानों ने हर चीज़ भुला दी थी। आज उसे बोल क्यों किया, जवाब दे। धाड़ती हुई उसके मुंह पर लात मारी तो मनाहिल के मुंह चीख निकल गई। वो माही पे की तरह तड़पता बेहोश हो चुका था। जवाब दे मुझे, उठ, जवाब दे। उसके बेहोश वजूद को उठाता मुंह पर मुक्के मारने लगा, मगर वह बेसुध हो चुका था। जियान, मनाहिल ने बहुत मुश्किलों से पुकारा तो जियान ने पलट कर उसे देखा जो बहुत अजियत में बैठी थी। मन उसे छोड़ता दौड़ता हुआ उसके पास आया और अपनी बाहों में समा गया। मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। मेरी जिंदगी बहुत जुल्म किया मैंने तुम पर। उसके नीले पड़ते चेहरे को थाम कर जा बजा अपनी मोहब्बत का लफ्ज़ छोड़ता हुआ बोला।
तो मंहाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मन मेरी जान, मैंने बहुत गम दिए, उसने बोलना चाहा मगर वो उसके लबों पर हाथ रख गई। हाँ, आपने बचा लिया मुझे। वह मुश्किल मुस्कुराते उसके लबों से बस इतना ही निकला था। जियान की आंखें भी नम होने लगी। एक बार फिर इसे खुद में जज़ब कर लिया। मंहाल की निगाह सामने उठी। अब्दाल गन ताने खड़ा था। उसने बेयकीनी से उसे देखा। जियान जोर से चीखते रुख मोड़ा था, तभी जोरदार फायर की आवाज़ पूरे फार्म हाउस में गूंज उठी। जियान ने सामने खड़े अब्दाल और मंहाल के जिस्म से निकलते खून को देखा। जब भी अब्दाल ने दूसरी फायर की थी, आह! मंहाल के दर्द भरी सिसकी निकली थी। जियान ने वहशत के आलम में अपने रिवाल्वर और अंधाधुंध अब्दाल पर चला दिया। राहम और ऑफिसर भागते हुए कमरे में आए थे, तभी वो झटके से मुंह के बल जमीन पर गिरा था। मन, आंखें खोलो मन! रिवॉल्वर फेंक कर चीखती उसके बेजान वजूद को झंझोड़ा, मगर उसकी गर्दन एक जानब लड़क चुकी थी। राहम सख्ती किसी के आफियत में जमीन पर बैठता चला गया। मन, उसके साकत वजूद को सख्ती से खुद में जज़ब किए हलक के बल चीख उठा था। कैसी है डॉक्टर साहब मेरी बेटी, प्लीज़ बताएं। आईसीयू से निकलते डॉक्टर के पास भागते हुए आए। उसने बस एक नज़र उन्हें देखा था। मिस्टर इब्राहिम, हम आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहते। आपकी बेटी को कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुकी हैं। दुआ करें वो होश में आ जाए, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। अफसोस से कहते आगे बढ़ गया, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी वहीं बेंच पर ठहर गए थे। इनकी हंसती मुस्कुराती बच्ची को अचानक क्या हुआ था? उन्हें होटल मैनेजमेंट ने ईशा को हॉस्पिटल पहुंचाकर फ़ोन किया। वो दौड़े चले आए थे, मगर बेटी की हालत ने इन्हें तोड़ कर रख दिया था। इब्राहिम साहब, ये क्या हुआ? हमारी फूल सी बेटी को? सितारा बेगम से सख्त हुई शिवा के कंधे से लग गई, जो खुद निढाल से बैठे थे, मगर इन्हें नहीं मालूम था कि एक और अलमनाक खबर इनकी मुंतज़िर थी। सर, एक अहम बात करनी है आपसे। फारूक काफ़ी घबराया हुआ उनके पास आया था। वो शाम से ही यही मौजूद था जब उसे पुलिस ने कॉल करके बुलाया था। फारूक, अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे जाओ यहाँ से, निढाल से बोले। सर, बहुत अहम बात है, प्लीज़। उसने बेबसी से गुजारिश की तो इस बार उन्होंने परेशानी से उसे देखा। क्या बात है? कमज़ोर सी आवाज़ में बोले। उसने एक दुख भरी नज़र से अपने माँ बाप जैसी शख्सियत को देखा। सर, अब्दाल सर पुलिस इनकाउंटर में जा बहक हो गए हैं। सर झुकाकर आहिस्ते से बोला तो वह दोनों तेज़ी से खड़े हुए थे। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो? वो तो दुबई में है। उसका गिरबान पकड़कर धाड़ उठे। नहीं सर, वह पाकिस्तान में थे। उन्होंने जियान हैदर की वाइफ को यारों का माल बनाया हुआ था। 2 दिन से मंहाल हैदर को भी गोली लगी है। वो इसी हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त में है। इब्राहिम साहब के हाथ थाम कर दुख से बताया। इन्हें लगा सात आसमान इन पर गिर गए हो। अब्दाल, सितारा बेगम की दिल खराश चीख गूंजी थी और वह फर्श पर बैठती चली गई। ये झूठ है मेरा अब्दाल, ऐसा नहीं हो सकता। रोते हुए दीवानों की तरह चीखने लगी। प्लीज़ मैम, संभालो खुद को। सदमे में खड़े इब्राहिम साहब को बेंच पर बिठाकर इनके पास आया, जिनकी हालत बिल्कुल दीवानी सी होने लगी थी। ये क्या किया तूने अब्दाल? बेंच से सटी खाए फूट फूट कर रो पड़े। वो लुट चुके थे। उनकी एक औलाद मुर्दा हो चुकी थी, जबकि दूसरी बिस्तर मर्ग पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इन दोनों की जिद और खुदसरी ने आज इनका आशियाना हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। बेटा, आखिर कब तक तुम ऐसे रूठे रहोगे? फायज़ा मलिक दुख से रो पड़ी थी। उनकी इकलौती औलाद नाराज़ होकर 7 समंदर पार बैठी थी। इस दूरी ने इन्हें निढाल सा कर दिया था। मामा प्लीज़, आप रोए मत। वो यकदम ही बेचैन हो गया। अपनी जान से प्यारी माँ को कैसे रोता दे बर्दाश्त कर सकता था? क्यों न रोऊं, तुम रूठ कर चले गए। न माँ की परवाह है, न बीवी का कोई ख्याल। वो फट पड़ी थी, क्योंकि वह रामीन के नर्वस ब्रेकडाउन का भी उसे बता चुकी थी, मगर वो तब भी न आया था। माँ की बात पर उसके चेहरे पर तमस्खुर सा फैल गया। बीवी, आप इस घटिया लड़की का जिक्र मेरे सामने ना ही करें तो बेहतर है। लहजे में उसके लिए सिर्फ नफरत थी, जिसे उन्होंने बखूबी महसूस किया था। मोहित, वो बहुत पशेमा है बेटा। तुम्हारे गम ने उसे तोड़ कर रख दिया है। उसे एक मौका तो दे सकते हो। और अमीन की हालत से आगाह थी और इसकी माफ़ी ने उनका दिल भी पिघला दिया था। मेरा बस चले तो अब इसकी जान ले लूँ। आप मौके की बात कर रही हैं? बता दीजिएगा, इसे बहुत जल्द डाइवोर्स देने वाला हूँ इसे। ज़हर खान लहजे में कहता है। इनको साकत कर गया था। ये क्या कह रहे हो मेरी बेटी? इतनी बड़ी सजा मत देना उसे। फायज़ा मलिक घबरा कर बोली, मगर वो काल काट गया था। इस टॉपिक पर वो कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो धोखा इसे रामीन ने दिया था, दिल में कहराम बर्पा कर गया था। रामीन, मुझे तुमसे मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी मासूमियत और मोहब्बत की वजह से हुई, मगर तुमने सब ख़त्म कर दिया, सब कुछ। आंखें सख्ती से मीच गया। वजह से चार घर समझ रहा था। वही इसकी कातिल निकली थी। जिसकी मोहब्बत के आगे उसने मंहाल हैदर को बुला दिया था, वही इसकी ज़िंदगी उजाड़ गई थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक घंटे से बेचैन सा टहल रहा था। वो आईसीयू में पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। इस पल वो खुद से बहुत दूर महसूस हुई थी। मेरे रब, तूने एक मोहब्बत करने वाली पाक लड़की को मेरे लिए उतारा था। इसे मुझसे दूर मत करियो।
मैं बिखर जाऊंगा। मेरे रब, मेरी मन की हिफाजत करियो। पिलर से सर टिकाए अपने रब से दुआ गो था। दुआओं से टूट कर गिरे थे, दिल में तूफान सा बरपा था। कैसी है बेटा मेरी बच्ची? फाइका बेगम ने रोते पूछा। वो अभी रामीन के साथ हॉस्पिटल आई थी। जिया ने खामोशी से इन्हें और रोती हुई रामीन को देखा। होश हो जाए, मौत की दहलीज पर है वो, कर्ब से बोलता इनके दिलों को चीर गया। भाई खुदा ऐसा मत कहें, रामीन ने सिसकते हुए कहा। तो जियान की आंखों में खून उतर आया। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, दफा हो जाओ यहाँ से, दहाड़ते हुए बोला तो राहम और हिना तेजी से करीब आए। जियान मेरे भाई सब्र कर, ये लोग भी दुखी हैं। राहम ने मोहब्बत से समझाना चाहा, मगर जियान ने एकदम मुस्कुराना निगाह माँ और बहन पर डाली। इनको ले जाए राहम यहाँ से, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बहुत जब्त से बोला था। हिना, रामीन और फाइका बेगम को कोने में ले आई। प्लीज़ हिना, मुझे बस ये बता दो कि मनाहिल की कंडीशन कैसी है और ये क्या हुआ कैसे? उसके हाथ थामती इल्तिजाइया बोली। हिना की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। एक गोली बाजू पर और दूसरी दिल के करीब लगी है। दुआ करो अल्लाह से कि वो बच जाए। रोते हुए उसे बताया। हम बता रहे हैं, मनाहिल ने जियान भाई को गोली खुद पर ले ली। उसकी बात पर फाइका बेगम खुद को ज़मीन में धंसता महसूस कर रही थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले। रोते हुए वहीं कुर्सी पर ढेर हो गई। रामीन की हालत में से मुख्तलिफ नतीजा भी उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे, जो लगता था ज़िंदगी से बिल्कुल ही रूठ गई थी। मिस्टर जियान, डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से निकलकर इसे पुकारा तो सब दौड़ते हुए आए। डॉक्टर कैसी अमन, इसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बेताबी से पूछा तो डॉक्टर ने दुख से उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर जियान, हमने पूरी कोशिश की, मगर जियान को लगा उसका दिल बंद हो गया हो। मगर क्या? दहाड़ता हुआ बोला। साकत खड़े राहम ने उसका कंधा पकड़ लिया। मगर इनकी ब्लीडिंग बहुत हो चुकी थी, हम बचा ना सके। आई एम सॉरी। डॉक्टर के अल्फाज थे जब हम जो सबके हाथ सांप पर गिरे थे। एक कहराम सा मच उठा था मगर वो साकत खड़ा रह गया था। ना किसी की चीखों की आवाज़ आ रही थी और ना ही किसी के रोने की। दिल था कि जैसे धड़कना भूल चुका हो। मन, लबों से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला था और कदम खुद ब खुद आईसीयू की तरफ बढ़ गए, जहाँ वो दुश्मनी जान, सर्द रंगत और जख्मों को लिए बेजान पड़ी थी। आंखों के सामने उसका खेलता हुआ मासूम बहाया चेहरा आया तो दिल में टेसे सी उठने लगी। मन, उठो, आंखें खोलो। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी जिद्दें बिल्कुल पसंद नहीं है। उठो। फौरन करीब आकर उसके साकत वजूद पर झुका। मन, मैं क्या कह रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उसे झंझोड़ता हुआ ठार उठा, मगर उसके वजूद में कोई हरकत न हुई थी। वह उमर और हम भी रोते हुए अंदर आए तो उसके जुनूनी अंदाज पर और शिद्दत से रो पड़े। मन, आई एम सॉरी यार, इतनी बड़ी सजा ना तो मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। हमारी मीरा अकेली रह जाएगी। मन, कुछ तो सोचो इसके बारे में। बस आंखें खोलो एक बार, उसके बाद जो चाहे सजा देना प्लीज़। मन उसके चेहरे पर झुका, मिन्नत करता रो रहा था। उसके आंसू उसके चेहरे को नम कर रहे थे। भाई, दुआ ने एक चीखनुमा आवाज़ में उसे पुकारा था, मगर जियान हैदर भी साकत सा रह गया था। जारी है। तभी बस कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।